So everyone note down. In the last class, I had explained you all the basic concepts. Also, I had given you the basic formulas, right, which is applied in probability. Now, today we are going to begin the first topic of the top, I mean the class 12 syllabus, and that is independent events. Okay, so everyone write down independent event. Topic का नाम है independent events. ठीक है, write down. Note down. Write down. Two or more events. Write this way, not two or more events. Write down this way. Two events E and F. Two events E, capital E, and F, capital F, are said to be independent. Are said to be independent if the probability of occurrence of one, if the probability of occurrence of one event, if the probability of occurrence of one event is not dependent on the probability of occurrence of the other event, is not dependent on the probability of occurrence of other event. So in simple word, we can say that if there are two events or more events, okay, now in this explanation, I have used two events E and F. Now these two events are said to be independent if the probability of occurrence of one is not dependent on the probability of occurrence of the other event. Now let's say, for example, suppose we are tossing coin first time, and if I ask you what is the probability of getting head in the first toss, you know probability of getting head in the first toss is what? Half. If I ask you what is the probability of getting tail in the second, now what do you think? Probability of getting tail in the second toss is dependent on the first toss? I don't think, because you toss a coin, it is not dependent on the toss कि कितने बार तुम टॉस कर रहे हो, है कि नहीं? हर एक टॉस में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि in every toss probability of getting tail is not dependent on the first previous toss. या पिछले बार में अगर मान लो हेड आ गया तो उस हेड आने पे हमारा टेल या हेड कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पिछला बार हेड आया था उससे हमको कोई डिपेंड नहीं करता है कि अब क्या आएगा, है कि नहीं? बिकॉज पिछले बार मान लो अगर हेड आया तो और मैं फिर से एक बार कॉइन को टॉस करूं तो वापस से हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. मतलब उस समय जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं उस केस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद दो आउटकम्स आते हैं और इन दोनों आउटकम में हेड आने का चांस प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 आउट ऑफ 2 हो जाएगा. ये चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि पिछले वाले में क्या है. ऑलराइट एवरीवन, सो इस तरह के इवेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, जहां पे एक इवेंट का अकरेंस पिछले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता या किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. इस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं. और याद रखना कि जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, if the events are independent, make sure that all the basic laws is used. मतलब सारे बेसिक लॉज तो यूज होगा ही, जितने भी मैंने बेसिक लॉज दिया था लास्ट डे के क्लास में वो सारा तो यूज होगा ही, बट और भी इसमें कुछ जो है एडिशनल लॉज है वो तभी यूज हो सकता है जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते. और वो क्या है कि जब भी हम दो इवेंट का इंटरसेक्शन का या दो से ज्यादा इवेंट्स का इंटरसेक्शन का अगर हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, so it is equals to probability of E1 into probability of E2 into probability of E3 and so on into probability of En. मतलब अगर मान लो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और मुझे दो इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है या तीन का निकालना है या उससे ज्यादा का. अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है
तो हम ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट एंड यू कैन मल्टीप्लाई जितने का तुमको इंटरसेक्शन निकालना, 3 इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो probability of E1 into probability of E2 into probability of E3 and so on. Clear? Now let me explain you with the help of one example. Suppose the question is, I want everyone to pay attention here. Suppose the question is 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. Find the probability of getting 2 heads. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 coins are tossed, find the probability of getting 2 heads. मतलब हम लोगों ने कॉइन को 2 बार टॉस किया और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स। तो एक बार कोई कॉपी मत करना, यहाँ पे फॉलो करो बढ़िया से। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स का निकालने का चीज नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो कैसे करके ये वाला चीज काम करता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ध्यान देना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, तो यू नो दैट if a coin is tossed twice, the sample space are all right. So we are finding that we have 4 outcomes. अब तुमसे पूछा जा रहा है what is the probability of getting 2 heads, मतलब getting head in the first and head in the second. समझ है ना, head in the first मतलब toss, head in the second toss, correct? Now if I ask you what is the, लेकिन यही तो है ना, probability getting 2 heads का मतलब क्या हुआ, getting head in the first toss and getting head in the second toss. So anyone who can tell me what will be the answer of this? 1 by 4, because out of 4 outcomes we are finding that there are only one case, one possibility, I mean ये 4 बार में ये जो होने का जो number of chances है, number of times ये होने का जो तरीका है वो क्या है, एक ही बार है। So 1 by 4 is the probability of getting head in the first and head in the second. Now tell me what is the meaning of and? Clear? अब एक बात बताओ, and के पहले वाला चीज को अगर हम एक इवेंट मान ले और and के बाद वाला चीज को एक इवेंट मान ले, तो मैंने अभी इंडिपेंडेंट में यही तो तुमको समझाया था ना, इंडिपेंडेंट में यही चीज तो तुमको समझाया था ना कि अगर मुझे पता है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, now what do you think कि getting head in the first toss is half, getting head in the second toss is also half? What do you think कि क्या ये दोनों टॉसेस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है डिपेंडेंट, वो टॉस पे डिपेंडेंट है, वो आने पे डिपेंड नहीं कि पहले बार में क्या आता है और दूसरा बार में क्या आएगा, उस पर कोई तुम्हारा रिलेशन नहीं है। तो मैंने भी बताया था कि जब भी हम 2 इवेंट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं 3 इवेंट का, क्योंकि यहाँ 2 ही चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई, I mean, I can say head in the first into probability of head in the second. क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो आंसर आया है अपना, ये किसके बराबर है, probability of getting head in the first into probability of getting head in the second. देखो ये तो मैंने बताया था ना कि इंटरसेक्शन अगर हम निकाल रहे हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो मैं दोनों इवेंट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू का अपना आंसर निकाल सकता हूं। मतलब दोनों इवेंट्स का अलग अलग प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना वही आंसर आएगा। Now what is the probability getting head in the first into what is the probability getting head in the second? क्या ये आंसर इसके बराबर है? और इससे भी ये प्रूव हो जाता है, इस चीज से भी ये प्रूव हो जाता है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो तुमको अगर प्रूव करने बोला जाए कि प्रूव दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो एक तुम नॉर्मल मेथड से बेसिक लॉ, ये मैंने क्या किया, बेसिक अपना कंसेप्ट यूज किया कि नहीं, और एक तुम एक्सेप्शन मतलब जो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है वो वाले लॉ को यूज करो और मिलाओ, दोनों को मैच करो कि क्या वो दोनों बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। सो एक बार फटाफट इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम लोग दूसरा एक सम लेंगे, और वो सम में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लगेगा। अगर वो सम समझ में आ जाता है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में अगर यहाँ से 2 से 4 मार्क्स आता है तो 100% सिक्योर हो जाएगा। मतलब मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि उस सम के अलावा वो सम को समझ जाने के बाद, आप बाकी जितना भी सम है उस चीज से रिलेटेड है। देयर इज नो
मतलब ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि नहीं आएगा उससे रिलेटेड कोई सम, अगर इंडिपेंडेंट हो तो उसी पे बेस्ड रहेगा। तो फटाफट इसको एक बार कॉपी करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरा। सर आप म्यूटेड है। So everyone note down once again, to explain you the concept of independent events properly, I need to teach you what is a conditional probability or dependent events. But actually पहले मैं एक सम पहले कराया था, हम लोग जो टॉपिक कर रहे पहले उस चीज पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे, ध्यान रहेगा। तो एक बार जो मैं सम लिखा रहा हूँ, एक बार सब पे इसको कॉपी करो। I'm just dictating one question, please everyone, question I mean, just write down, copy down that question in your copy. Write down. Write down. A problem is given to three students. A problem is given to three students, A, B, and C. The probabilities that the problem will be solved by A, B, C are A, B, and C are 1/3, 1/4, and 1/5 respectively. Okay. Clear? Find the probability number 1. Find the probability Roman 1. Okay. It's there. These are sub questions. जो मैंने लिखा रहा. Find the probability number 1. Exactly to solve the problem. Exactly to solve the problem. Number 2, at least one solve the problem. At least one solves the problem. Number 3, problem is solved. Number 3. Number 4, problem is solved. Number 4, at most 2 solves the problem. Okay. So now I want everyone to pay attention. Please don't write a single line, single letter. Okay. Because if you understand this sum, oh, this topic is over. There are 3 topics basically: independent, conditional, and basal. Okay. तो सबसे पहला point, a problem is given to 3 students. All right. So let even be the event that A solves the problem. E2 is the event that B solves the problem. E3 is the event that C solves the problem. All right. Now it is clearly given in the book that a problem is given to a student and the names are ABC. So it is already given that probability A solves the problem is denoted with event E1. So probability of E1 means A solves the problem is 1 divided by 3. Probability that B solves the problem is 1/4. And probability that C solves the problem is 1/5. So if I ask you, are these events E1, E2, E3 independent or not? So your answer will be clearly and definitely independent events. Why? Because A solving the problem is not dependent on B solving the problem. How do you know this part? Because
probability A solves the problem is 1/3 and that B solves the problem is 1/4. Had it been this way, A solving the problem is 1/3, B solving the problem is 2/3. मतलब एक का अपॉर्चुनिटी दूसरा का फेलियर, दूसरा का अपॉर्चुनिटी एक का फेलियर, ऐसा तो है नहीं ना। मतलब उस पर्टिकुलर मतलब स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा वो उस पर डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंडेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं एक ही प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए देने के बाद मुझे दिख रहा है कि ए सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम 1 आउट ऑफ 3 केस। इसका मतलब जो टीचर ने दिया था उसको इस बात का भरोसा था कि 3 बार में अगर वो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो मैं ये प्रॉब्लम दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसका चांस क्या है 1/3। दूसरे स्टूडेंट का सॉल्व करने का चांस उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी 1/4। So the next question goes to you all is, what is the probability that A fails to solve the problem? Clear everyone? Okay, now the next part. Now the next part is, there is no need of copying now because just मैंने question को ही देखा है ऐसे probability के लाइन में, तो question starts now, solution starts now. Listen, अगर मान लो मैं 3 को प्रॉब्लम दिया मैंने सॉल्व करने के लिए ABC को, ठीक है, और मान लो मैंने इवन डिनोट किया है, इवन सपोज चलो ABC, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, लास्ट डे मैंने ये चीज को समझाया था कि अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करूं तो सैंपल स्पेस कितना होगा, क्या होगा, नहीं कितना होगा, ठीक है। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करूं तो सैंपल स्पेस कितना होगा, क्यों हो रहा है 4, बताओ तो पहला बार में क्यों हो रहा है, बिकॉज एक कॉइन को टॉस करने के बाद आउटकम्स क्या क्या मुझे मिल सकता है, 2 आउटकम मिल सकता है, या तो हेड या टेल, तीसरा मिल सकता है नहीं, हर बार कॉइन को टॉस करने से 2 ही आउटकम आएगा। तो अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो 2 2 जा 4, 3 बार टॉस करता हूं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमको प्रॉब्लम देता हूं, जिस सबको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने एक प्रॉब्लम दिया तुमको, मतलब सबको अपने आप में कि तुमको मैंने प्रॉब्लम दिया तो तुम क्या करके मुझे दे सकते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हो या फिर बोलोगे कि नहीं और कुछ तीसरा नहीं, देयर इज नो थर्ड वे। तो एक बात बताओ, मैं अगर प्रॉब्लम एक को दूं तो हमारे मुझे क्या क्या आउटकम्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मतलब एक्सपीरियंस कर सकता हूं। मी एज अ टीचर, if I give problem to one student, I may expect 2 things, solve not solve। अगर मैं 2 को दूं तो क्या होगा, नहीं 2 को दूं तो कितने चीज में एक्सपीरियंस कर सकता हूं, वो 2 से 4, क्या सॉल्व सॉल्व, सॉल्व नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व सॉल्व, दोनों नॉट सॉल्व, आई मीन अनसॉल्व, राइट। अगर मैं प्रॉब्लम 3 को दूं तो क्या होगा, 8 आउटकम्स होगा, एक का 2, दूसरा का भी 2, तीसरा का भी 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्योंकि अब तुम ये सोच रहे हो कि ये क्या बता क्या रहे हैं, क्यों 2 + 2 + 2 क्यों नहीं कर रहे, हमको 2 + 2 + 2 क्यों कर सकते, बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस पूरा 3 को मैं एक मतलब 3 जो मतलब मैंने प्रॉब्लम दिया 3 बच्चे को, और मैं ये तीनों का आउटकम को मैं एक केस मान रहा हूं कि ये क्या हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा हो सकता है कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक नहीं, वो भी बहुत वे से हो सकता है। सो व्हाट आई मीन इज, अगर मैं एक प्रॉब्लम देता हूं एक को तो 2 चीज होगा, क्या होगा, सॉल्व या फिर नॉट सॉल्व। अगर मैं ये प्रॉब्लम 2 बच्चे को देता हूं तो वो पहला वाला अगर सॉल्व कर दिया तो दूसरा वाला क्या कर सकता है, सॉल्व नॉट सॉल्व। इस तरह के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लियरली दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम में अगर एक स्टूडेंट को देता हूं तो 2 आउटकम, 2 को देता हूं तो 4, और 3 को देता हूं तो 8। तो यहां पे वो 8 आउटकम्स क्या क्या है देख लेंगे, all 3 solve the problem, ठीक है, exactly 2 solve the problem, and we find that this can occur in 3 possible ways. I can experience this outcome in 3 possible ways, where 2 will solve and 1 will fail to solve the problem. 1 will solve, या मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर सकता हूं कि तीनों लोग फेल मतलब नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक बात बताओ, ये जो एक केस है, इस केस को मैं क्या रीड करूं, ध्यान देना, क्या मैं रीड करूं, ये वो केस है ना जहां पे ए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड बी भी सॉल्व कर रहे हैं एंड सी भी सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है बोलने का, या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है जो मैं बोलने वाला हूं कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम और बी सॉल्व द प्रॉब्लम और सी सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सा करेक्ट है बताओ दोनों, एंड वाला या और वाला,
एंड वाला, क्यों? क्योंकि ये वो केस है जब मैं 3 को देने के बाद जब टाइम अप हो गया तो मैंने मांगा और देखा कि ए भी सॉल्व कर दिया एंड बी भी सॉल्व कर दिया एंड सी भी सॉल्व कर दिया। तुम खुद सोचो कैसा है बोलने का तरीका। ए भी सॉल्व कर दिया और बी भी सॉल्व कर दिया, मुझे दिख रहा है तीनों का आउटकम और मैं ऐसे बोल रहा हूँ ए भी सॉल्व कर दिया और बी भी सॉल्व कर दिया और सी भी सॉल्व कर दिया। ये नहीं हुआ। क्या हुआ? ये वो केस है जहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये वो केस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जहां पे ए भी सॉल्व कर रहे हैं एंड बी भी सॉल्व कर रहे हैं एंड सी भी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम इसको, अगर मुझे अब देखो इसको ऐसे पूछते हैं, ध्यान दें, लेट्स नाउ कन्वर्ट द होल क्वेश्चन दिस वे। लिसन हियर, आई एम गिविंग प्रॉब्लम टू 3 स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर ए बी एंड सी। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही दूसरा टीचर आके मुझे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सुनना ही, ये पूछ रहा है you find the probability, tell me what is the chance that A solves the problem and B solves the problem and C solves the problem। बात को सुनना, क्या बोल रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं कि what is the probability that आपने 3 को जो दिया है उसमें A भी सॉल्व करेगा एंड B भी सॉल्व करेगा एंड C भी सॉल्व करेगा। मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं कि what is the probability A solves the problem and B solves the problem and C solves the problem। Everyone, is this clear? वो मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे। अब देखो दूसरा वाले केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा चलिए ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सी फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सी फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब C3 के ऊपर क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि E3 क्या डिनोट करे, सॉल्व, तो E3 नॉट क्या डिनोट करेगा, नॉट सॉल्व। अब देखो तीसरा वाला इवेंट, तीसरा वाले केस, नॉट इवेंट, तीसरे वाले केस में हम एक्चुअली कोई भी केस में हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू यूज इंटरसेक्शन इन बिटवीन। इफ यू हैव गॉट इंटरसेक्शन इन बिटवीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इंटरसेक्शन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इंटरसेक्शन। यू कैन डायरेक्टली आई मीन राइट डाउन E1 बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटरसेक्शन E2 नॉट इंटरसेक्शन E3 नॉट। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ रहा है सबके को? अब तीसरा वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 नॉट E2 E3, इसके बाद ये हो गया E1 E2 नॉट E3 नॉट, ये हो गया E1 नॉट E2 एंड E3 नॉट, दिस इज E1 नॉट E2 नॉट एंड E3, और ये हो गया E1 नॉट E2 नॉट E3 नॉट। Is this clear to everyone? Yes. Now just tell me one thing. As you know that E1, E2 and E3 are what kind of events? Independent events. Because A solving the problem is not dependent on B's solving solution. अब बताओ मुझे, अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे इवेंट्स का मैं इंडिविजुअल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके क्या मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस और नो? डू यू एग्री एवरीवन? अब देखो मुझे ये बताओ कि इसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब मैं ये केस कब पूछ, मतलब ये केस कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑल 3 सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ये पूछा जाए। तो तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हिच इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हिच इज 1/5, तीनों का प्रोबेबिलिटीज को क्या वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो बताओ तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 1/60। अब मैं नेक्स्ट वाले केसेस में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखाने वाले नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज लिखने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आया मैं क्या कर, मतलब मैं क्या चीज को स्किप कर रहा हूँ, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 नॉट नहीं लिखे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, this into this that is 4/60। इसका आंसर क्या होगा, 3/60, 2/60। Are you getting my point? Probability of E1 not into probability of E2 into probability of E3। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2/60। इसमें क्या आएगा, 12/60। इसमें क्या आएगा, 8/60। This is 12/60। I think I made some mistake। नहीं, ये वाला है तुम्हारा 6/60 और लास्ट वाला क्या है, 24/60। Check once everyone. Now just tell me one thing कि अगर मैं ये सारे केसेस, कितने केस है यहाँ पे,
अगर मैं 8 केसेस के प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को मैं ऐड करूं तो आंसर कितना आ रहा है? क्यों आ रहा है 1 पता है? क्योंकि ये सारा एग्जॉस्टिव केसेस है। व्हाट डू मीन बाय एग्जॉस्टिव केसेस? एग्जॉस्टिव केसेस का मतलब होता है वो सारा केसेस जहां पे उन सारे केसेस का सम टोटल जो है वो पूरा पॉसिबिलिटीज के बराबर हो। मतलब अगर मैं एक प्रॉब्लम दूं 3 स्टूडेंट को तो क्या क्या मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, इसके अलावा और कुछ ऐसा होगा नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब ये सारे एग्जॉस्टिव केसेस है। एग्जॉस्टिव केसेस का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबिलिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी एग्जॉस्टिव केसेस है उन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। जितने भी इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स है, इन सारे छोटे छोटे इवेंट्स का जो यूनियन का जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? सैंपल स्पेस के बराबर। और सिंपल तरीका ये भी है कि यहाँ पे देखो सारा का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल 1 से ज्यादा कभी हो सकता है क्या? 1 से ज्यादा कभी कैसे कभी होगा? इन सारा का सम टोटल कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। याद रखना इस बात को। 1 होगा या फिर 1 से लेस होगा, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सारा एग्जॉस्टिव केसेस। मतलब इतना का जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ ये समझाया जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या क्या हो सकता है। इतना कुछ नहीं पूछा है हम लोग को। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पूछा सिर्फ हमको इतना ही था, लेकिन मैंने सारा केसेस तुमको बना के दिखा। इसको कहां लिखोगे तुम? रफ में। क्या तुमको 1 या 2 आंसर पूछने के लिए क्या तुमको सारा दिखाना है? नहीं, मैंने तुम लोग को बस बताया यहाँ पे कि ऐसा ऐसा चीज हो सकता है। तुमको जो चीज पूछा जाएगा अब वो इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। या तो समझ में आया बात? मतलब इसी में से कोई ना कोई आंसर तुमको खोज के अपना आंसर बोलना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे कि क्या इसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है? इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा? क्या वो बोलेगा तुमको? जो बोलेगा वो सब यहाँ पे है। यही तो बोल सकते हैं ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। वो जो मुझे टीचर जिसने मेरे को टेस्ट कर रहा है स्टूडेंट के लिए कि क्या भरोसा है, मतलब आपको क्या भरोसा है कि आपके स्टूडेंट तीनों सॉल्व कर देंगे, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। वो पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर 3 स्टूडेंट्स इन व्हिच 2 विल सॉल्व एंड 1 विल फेल, तो भी मैं आंसर दे सकता हूँ इसको देख। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कोई बता सकता है एग्जैक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब मुझे यहाँ पे किस किस को ऐड करना है मुझे? इसको इसको और इसको, क्योंकि ये 3 किस, क्योंकि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 2 सॉल्व्स एंड थर्ड फेल्स। एग्जैक्टली 2 मतलब 3 में 2 जन सॉल्व करेगा। तो इसमें हमको कौन कौन से केस को ऐड करना है? 2 को, 3 को, 4 को। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 नॉट E3, probability of E1 not E2 and E3। और तुमको ये सारा वैल्यूज पता ही है वहां पे। इसका 4/60 आंसर है, इसका 3/60 और इसका 2/60। कितना आएगा बताओ तो? 9/60। कितना हो गया? 3/20। अब बताओ नंबर 2 में क्या पूछा है बताओ तो? नहीं, ठीक से पढ़ो। एटलीस्ट 1। अच्छा बताओ तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम उतना। अब तुम मिनिमम 1 जन सॉल्व करेगा तो तुम ये नहीं सोच सकते कि 4 जन सॉल्व करेगा, 5 जन सॉल्व करेगा। कितने जन है टोटल? 3 जन। तो हम यही ना सोच सकते हैं कि अगर मुझे वो आदमी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तुमने तो 3 स्टूडेंट को दे दिए, कम से कम तुम्हारे एक बच्चे ने सॉल्व करके दिखाए थे, उसका समानक है। वो मुझसे ये नहीं पूछे तो कम से कम एक बच्चे, मतलब मुझसे ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 of 3 will solve the problem। so at least 1 of 3 मतलब exactly 1 will solve the problem, उसका क्या probability है? exactly 2 will solve the problem, उसका क्या probability है? exactly 3 will solve the problem, उसका क्या probability है? फिर से मैं बोल रहा हूं at least one of them means 3 students जिनको मैंने प्रॉब्लम दी है। तो at least one of them मतलब कम से कम एक जन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कम से कम एक का मतलब एग्जैक्टली एक, मतलब मिनिमम 1, एक जन या फिर 2 जन या फिर 3 जन। तो एक जन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा केस डिनोट कर रहा है बताओ? कौन कौन सा केस डिनोट कर रहा है जिसमें एग्जैक्टली एक जन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ये छोड़ के ये 3 केस डिनोट कर रहे हैं जहां पे एग्जैक्टली एक लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा केस डिनोट कर रहे हैं जहां पे तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं? ये 3 केस। कौन सा केस शो कर रहा है जहां पे तीनों का तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? है कि नहीं? ये केस शो कर रहा है जहां पे तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 केस शो कर रहा है जहां पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं।
2 जन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 केसेस किस पार्ट को शो कर रहे हैं, जहां पे एग्जैक्टली एक जन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या पूछा है, एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक जन या फिर 2 जन या फिर 3। तो एक बात बताओ, तुमको पता है कि ये सारा का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल किसके बराबर है, तो तुम क्या ये वाला बेटर प्रेफर करोगे, इस 7 केस को ऐड करना प्रेफर करोगे या 1 माइनस लास्ट केस को? बताओ एवरीवन, इज दिस क्लियर एवरीवन कि 1 माइनस, अगर हम इतना देखो आंसर तो तुमको मार्क्स तो मिलने ही वाला है, ऐसा नहीं कि तुमसे तुम्हारा कोई मार्क्स काटने के लिए मतलब काटेगा, बट यहाँ पे तुम ये 7 केसेस को ऐड करके जो टाइम वेस्ट करोगे, क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट इट इज विजिबल, यस। एक काम करो तुम लोग, पहले मैं ये इतना पार्ट पहले कॉपी कर लो, so that I can erase this part and I can explain you all other questions which will come in this. Okay? पहले यहाँ पे कॉपी करो। Now see, we were in this number 1. I mean, sorry, we completed number 1. Now we are in number 2. Probability at least one solves the problem. So probability at least one solves the problem is 1 minus probability none solves the problem. I hope you are understanding why I'm saying 1 minus probability none solves the problem. Because instead of taking these 7 cases, it is better that we find 1 minus probability none solve the problem. So अगर मैं ये पता है कि यहां से लेके यहां तक का सारा का सम 1 है, तो अगर मुझे ये पूरा का सम टोटल निकालना है तो मैं 1 माइनस लास्ट वाला करूंगा तो आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? डू यू एग्री एवरीवन? 1 माइनस लास्ट वाले का प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हटा दो 1 से, तो क्या मिलेगा इस पूरे का सम टोटल? Okay, and this is 1 minus 24 by 60, which is 36 by 60. That is 3 by 5. All right. अगर मान लो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, what is the probability that problem is solved? एक बात बताओ मुझे, देखो बात को ध्यान से सुनो, मैं हूं, तुम ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम को तुम अपने, देखो तुम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम को मत देखो, तुम सोचो कि तुम ही टीचर है और तुमने किसी और को प्रॉब्लम दी है और तुमसे कोई पूछ रहा है, ऐसे सोचो तुम, ठीक है? डोंट थिंक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, नहीं तो उतना क्लियर नहीं होगा। ऐसे सोचो, अब देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि आपने, देखो कोई और पूछ रहा है मुझसे कि आपने 3 को प्रॉब्लम तो दे दिया, नाउ टेल मी, आपने वो नंबर 1 तो बता दिया, नंबर 2 तो बता दिया, अब बताओ मुझे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। बात को सुनना ध्यान से, अब मुझे ये बताओ कि आपने 3 को दिया, तो 3 में 3 तो दे दिया आपने, लेकिन अब ये बताओ आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, प्रॉब्लम, अच्छा ये क्वेश्चन क्या था मुझे बताओ। अच्छा तो वो मैं एक चीज, मैं फिर से एक बार इस चीज को एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने 3 को प्रॉब्लम दे दी है, तो ये बताओ आप कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो 3 जो है, 3 को तो आपने दे दिया, ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बताओ मुझे वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या निकालने का, बताओ। एग्जैक्टली, मतलब वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मुझसे ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम मुझे 3 में से 1 सॉल्व करके दे या 2 सॉल्व करके दे या 3 सॉल्व करके दे, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरे को प्रॉब्लम सॉल्यूशन से मतलब है ना, तो वो सॉल्यूशन 1 से आए या 2 जन से आए या 3 जन से आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब ये हुआ
कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है और नंबर 2 का आंसर एकदम सेम। नंबर 3 में जो पूछा जा रहा है वही सेम चीज नंबर 2 में भी पूछा गया था। बात समझ में है तुम लोगों को? मेरा बात समझ में क्लियर? कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि आपने 3 को प्रॉब्लम तो दे दिया, अब मुझे ये बताओ कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब वो एक सिचुएशन होगा जब 3 में कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा मुझे, तब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया, मिल गया सोल्यूशन उसका। या वो एक सिचुएशन होगा जहां पे अलग अलग सिचुएशन जहां पे 3 में 2 जन प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे देगा। मतलब वो कितने वे से हो सकते हैं? 3 वे से। और वो एक सिचुएशन होगा जहां पे तीनों का तीनों मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, वो एक तरीके से। तो ये पूरा 7 केस या फिर 1 माइनस लास्ट केस। ऑलराइट, सो डायरेक्टली व्हाट आई हैव रिटन, नंबर 3 का आंसर इज सेम है नंबर 2 का। इसके बाद क्या बताओ? नंबर 4, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So probability, what do you mean by at most 2? Can you tell me? मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जार। वो बोल रहा है कि अब ये बताओ, ऐसे पूछ रहा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्व करने वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे आपके सॉल्व कर देंगे, इसका क्या संभावना है? क्या संभावना है कि आपका जो 3 बच्चों को आपने जो दिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 2 जन प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 2 का मतलब क्या हुआ? या तो 2 या उससे कम क्या? 1 या फिर 0। तो 2 वाले कितने केस हैं? 3 केस। 1 वाले कितने केस हैं? ये 3 केस। 0 वाले कितने केस हैं? तो तुम ये 7 केस ऐड करना चाहोगे या 1 माइनस लास्ट फर्स्ट वाले केस? समझ में आया बात? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी all 3 solve the problem. So 1 minus probability all 3 solve, that is 1 minus 1 by 60, that is 59 by 60 is the probability. All right everyone, so क्या तुम लोग को ये सब समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जो है अगर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन लिखो तुम। नाउ एक चीज है, 1 मिनट, ये बनाना जरूरी नहीं है, ये मैंने बनाया जस्ट टू एक्सप्लेन यू क्लियरली कि वो क्या है। तुमको अगर ये दिमाग में आ जा रहा है क्या है, तुमको जरूरी नहीं है बनाना, और बनाओगे तो रफ में बनाओगे भी तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे करके कर देना, अपने आप तुमको समझ में आइडिया आ जाएगा। ओके, यस, क्या डाउट है? Write down one question. A problem is given to 2 students. Ram and Shyam. Probability that Ram solves the problem is 1 by 6 and that Shyam solves the problem is 1 by 5. Find the probability that exactly one of them solves the problem. Or find the probability that exactly one solves the problem. Write this way. Find the probability that exactly one will solve the problem. समझ में आया? A problem is given to 2 students, Ram and Shyam. Probability Ram solves the problem is 1 by 6. That Shyam solves the problem is 1 by 5. Find the probability that exactly one will solve the problem. Do fast. So your answer will be 1 by 5 into 5 by 6 plus 4 by 5 into 1 by 6. Yes or no? Yes. So your answer is 9 by 30. That is 3 by 10. 3 by 10. Check your answer everyone. है कि नहीं? मैंने कुछ स्टेटमेंट कुछ लिखा नहीं, बिकॉज हमको पता है कि जो लेवल का हम हमने देखा अभी उसके आगे कुछ भी नहीं है। एंड मेक श्योर दैट इंडिपेंडेंट में सारा सब इसी कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड। आज मैं बस इतना ही टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है? और जो बाकी टॉपिक है दैट इज कंडीशनल, वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा। बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन विल स्टार्ट व्हाट इज कंडीशनल। ओके, सो मैं आज होमवर्क फॉरवर्ड करूंगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द होमवर्क एंड देन यू अटेंड द क्लास।